دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری دنیا سے یہودیوں کو مٹانے کی قسم کھا رکھی تھی، جس کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا یہودیوں کا اس دنیا سے صفایا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ ہٹلر نے سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی، اور ہٹلر ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا انسان تھا، لیکن اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اس لیے کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس پر بہت ظلم بھی کیا کرتا تھا، ہر وقت مارتا پیٹتا۔ ہٹلر بچپن سے ہی اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اور صرف اپنے باپ سے ہی نہیں بلکہ پوری یہودی قوم سے اس کو نفرت ہو گئی تھی۔ ہٹلر کا بچپنا بھی بہت غریبی میں گزرا تھا۔ وہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ جرمنی کی فوج میں جوائن ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کو فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک بندوق بھی نہیں اٹھا پاؤ گے اور چلے ہو فوج میں جوائن ہونے۔ خیر دوستو، جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں جوائن کر لیا، اور اس دوران ہٹلر بھی جرمنی کی فوج میں جوائن ہو گیا۔ ہٹلر نے ایک لمبے وقت تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص فوج بنا کر سرکار کے خلاف ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے سرکار کی کرسی پر بھی بیٹھ گیا اور اس کی حکومت چلنے لگی۔ ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ تو چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اس لیے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور آخر میں ایسا ماحول بنایا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسے ہی اپنا سب سے اچھا لیڈر سمجھتے ہیں، تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا سے یہودیوں کا صفایا ہو جائے۔ کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری ہسٹری جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا، اور انہی یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، اور ہمیشہ سے ان لوگوں نے ہی دوسرے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ اس لیے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس کے اس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیر دوستو، جرمنی میں 6 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے، اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا۔ لیکن اب ایک ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو اتنی ساری لاشوں کا کیا ہوگا؟ آخرکار بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ اپائے نکالا کہ ہم ان سبھی یہودیوں کو بہت بے دردی کی موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر کھاد بنا لیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی اور ہٹلر کے حکم سے ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا، اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سبھی کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی کے لوگ استعمال کر سکیں،
और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सके। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्म को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरह के केमिकल मिले होते। खैर, उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उन मशीनों में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गल कर काले खोलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उस काले पानी को भी यह जर्मनी लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला कर पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काल एसिड को खेती की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ए यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाज़त देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर ऐसा जवाब देता कि जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और यह जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे नासुर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म ही किया है। इसलिए इतिहास में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि यह यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के ख़िलाफ़ साजिशें और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते और यह लोग हमेशा से ही वादे के ख़िलाफ़ काम करते आ रहे हैं। अगर इनकी करतूतों पर गौर करें तो सुनिए, दुनिया भर की कौम में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों को जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के ख़िलाफ़ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक़ पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फ़िरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बाद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबाह करो, तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़बाह नहीं करना चाहते थे और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आँखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत के आसमान से खाना भेजना शुरू किया तो इन लोगों ने जीत करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम
जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते और आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी करतूतें किस तरह की थी। जब इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का प्लान बनाया तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर को इनसे नफ़रत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला था। खैर, यह हमने एक छोटी सी झलक आपको यहूदियों की दिखाई है, ताकि आपको पता चल जाए कि यह यहूदी कितनी बुरी कौम रही है। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि यह एक ऐसी कौम है कि जो अपने कौम में किसी को आने नहीं देता, यानी किसी को कन्वर्ट होकर यहूदी बनने नहीं देता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई गैर मुसलमान बनना चाहे तो वो इस्लाम में आ सकता है, इसकी इजाज़त है, वो इस्लाम धर्म कबूल कर सकता है। या कोई ईसाई बनना चाहे तो उनके मज़हब में भी इसकी इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मज़हब में कन्वर्ट होकर दूसरे मज़हब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मज़हब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए तादाद के मामले में इस दुनिया में सबसे कम यहूदी है, लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतने आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को एक जैसा जकड़ कर रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ़ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज़्यादा गिरा देगा कि वह खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आजकल हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फ़िलिस्तीन पर सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन 57 से भी ज़्यादा मुस्लिम देशों में से सिर्फ ईरान और यमन इस इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही है। बाकी मुस्लिम मुल्क आपस में बैठे सिर्फ बातें करते हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के ख़िलाफ़ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आ जाएगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। हालांकि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों के सिर्फ इसी बात पर डर रहे हैं कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ गए तो यह सब इजरायली यहूदी और अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क के हालात ख़राब कर देंगे और हमारे मुल्क में भूखमारी आम हो जाएगी। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुकूमत याद दिला दे कि इनके रहते हुए कैसर किसरा कैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके। तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिटलर कौन है और इसके कारनामे क्या क्या है आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔